Hi guys, welcome to yet another episode of this particular YouTube channel, and in this episode I have a very special guest. So if you are thinking about learning marketing, sales, service, agency or any kind of that thing, this particular episode is going to be a bomb for you because we have a very special guest with us. His name is Manish Oswani, one of my ex-bosses also. I worked in Fullscoop for I think 4 to 5 months. I was as a brand manager in this company. We had a lot of value exchange during the company. I made very good connections. I learned new things, and I think this person can help you a lot understanding how you can grow your agency, how you can understand marketing, what you can do to basically start your career, because he is very senior to us and has a lot of experience that we basically don't have. So without a lot of taking your time, I just introduce Manish Oswani, and I would like him himself to introduce himself. So hi sir, कैसे हैं आप? I'm good. Yes. Thank you first of all for taking me along in this show on this video. So I'm Manish, like Himanshu told, and I had a very good acquaintance working with him on some creative projects, and I found him a really creative person to think out of the box and not keeping brains within the boundaries. So that is one thing that I as an employer look too much after when we do any kind of hiring, because I run an advertising agency, Fullscoop Digital, और advertising agency जब आप चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की requirement रहती है, that is nothing but the creative working. So that is a slight thing about us. We are an advertising agency for hotels specifically, so that is a niche segment that we specifically cater to for all new things in digital. Right. So, sir, right now you are having a very successful agency. You have a very big name in the market, right? How did it all started? Like, what was your childhood, or basically that 17, 18-year-old ka version, which was was the vision from the start, or it began later in your life? Like, how did it all started? क्या हुआ था ना, जब मैं कॉलेज कर रहा था MBA, by default I got only 3 to 4 names जिसमें से specialization choose करना है, and one of them was something that I did not knew anything about. Marketing पता था, HR पता था, IT पता था, entrepreneurship क्या होता है नहीं पता था. I'm talking back about 2008-9. Okay. Acquaintance है, कुछ अलग चीज़ होती है, बड़ी चीज़ होती है, US में बहुत फेमस है, इतना पता था, इसलिए इसको उठा लो. ये सोच के ले ली, बट लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट चीज़ है और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है. इसको आसान कंसिडर नहीं किया जा सकता है. एक सिंगल लाइन उसका ये मतलब समझ में आ गया कि आसान नहीं है, इसलिए सोचा कि एंटरप्रेन्योरशिप ही लेते हैं अगर आसान नहीं है तो. वो लिया और वो धीरे धीरे नॉट जस्ट इंटरेस्ट बट एक क्रेज बन गया कि अब ले लिया है तो फिर तो करना एक इमेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क बन गया. एंटरप्रेन्योरशिप लिया है स्पेशलाइजेशन और नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा. सो आई डिड दैट स्पेशलाइजेशन. कॉलेज खत्म होते से खुद का कुछ करना है, ये इस चीज़ से कंफर्म हो गया. क्या करना है, नथिंग आइडिया. आई डिड 3 ventures. One was starting a hostel, one was starting a doctor's helpline, but both did not work. And then I started this with some other name initially, AR Magic Card, sort of discounts from hotels for all people. तो basically आपने 3 ventures चालू करे थे इसके पहले, and then Fullscoop came. So were there any particular lessons जो आपको ऐसा लगा कि यार now since I started Fullscoop you can look back and be like कि yeah I did that mistake and that mistake and that mistake. What were like your top 3 mistakes that you did in the first 3 ventures? First mistake that I'm able to instantly recall is you need to keep a difference in your mind between what is the requirement of the market and what you can serve best. मैंने जो एक venture किया था Himanshu, that was about having a doctor's helpline 9806060606. बहुत मेहनत करके बहुत VIP नंबर लिया था. उस पर आप कॉल करो, बोलो मैं इस एरिया में खड़ा हूँ, विजयनगर, इंदौर और मे बी XYZ इन दिल्ली, और मुझे यहाँ पे कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए. आपको विदिन अ मिनट मिल जाएगा क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर पे कंप्लीट डायरेक्टली लिस्टिंग थी पूरी सिटी के डॉक्टर्स. और इससे रिलेटेड आज तक कोई पर्टिकुलर सर्विस अवेलेबल नहीं है. तो वो इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड सर्विस थी, बट दैट डिड नॉट वर्क वेल फॉर सो मेनी रीजंस दैट डॉक्टर्स वर नॉट इंटरेस्टेड टू पे, एंड इमीडिएट में केटर करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है कि ये 6 डॉक्टर्स तो हैं उस एरिया में, अभी कौन सा अवेलेबल है. सो बिकॉज ऑफ सेवरल चैलेंजेस दैट डिड नॉट वर्क वेल, बट इम्पॉर्टेंट था, आज भी है. तो क्या चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में, सिर्फ वो डिटरमाइन नहीं कर सकता है, बट आप क्या बेस्ट कर सकते हो वो भी उतना ही ज़रूरी है. और मार्केट में अभी क्या उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल है रिसोर्सेज, तो वो मुझे लगता है देखना बहुत ज़रूरी है. राइट. एंड व्हाट वाज लाइक द सेकंड मिस्टेक फ्रॉम द सेकंड स्टार्टअप दैट यू डिड जो आपको समझ में आई कि यार Fullscoop में नहीं कर सकता मैं? सो सेकंड वाज अबाउट द हॉस्टल. यू वुड हैव सीन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में हॉस्टल्स इनबिल्ट रहते हैं, पर ऑर्गेनाइज नहीं रहते. हमेशा कोई मिलेगा कॉलेज का बंदा तो हॉस्टल की कंप्लेंट गाली बकरा होगा, हॉस्टल गाली बकता हुआ बनता है. तो क्या इनके हॉस्टल्स को ऑर्गेनाइज बनाया जा सकता है उस तरीके से जैसे होटल्स रहते हैं? दैट वाज द आइडिया. अच्छा. सो इट वाज काइंड ऑफ डॉर्म रूम्स के जैसे? नहीं, वी आस्क इंस्टीट्यूट्स टू आउटसोर्स देयर हॉस्टल्स मैनेजमेंट टू अस. हॉस्टल आप वही रखो, ओके, बट उसको मैनेज हमको करना है. You got any clients in that? No. So in very instant
time itself it failed. So it gave an idea that why, for some reasons, again, why this cannot be worked out. But again, idea is still good craze for me, but because it was initial times, so failure steps were more than why it could work out. राइट और जो थर्ड स्टार्टअप था दैट वाज रिलेटेड टू होटल्स एंड डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग, तो वाज दैट द जर्नी पॉइंट टू फुल स्कूप स्टार्ट और लाइक वो कैसा था? तो मैंने 3 इसलिए बोले क्योंकि वो भी एग्जैक्टली वो नहीं है जो आज कर रहे हैं, दैट वाज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, बट बहुत सारे टर्न्स आए एंड इट इवेंचुअली केम टू अ स्टॉक कॉल्ड एज फुल स्कूप. दैट वाज जस्ट अ सिंपल डिस्काउंट कार्ड कि ये डिस्काउंट कार्ड आप दिखाओ XYZ होटल में एंड यू गेट 20% ऑफ. जब वो डिस्काउंट कार्ड चालू किया कस्टमर्स बहुत अच्छे से आए. ये थर्ड वेंचर में ये समझ में आया कि क्या करना चाह रहे हो, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व, वो बहुत ज़रूरी है, बट आर सम पीपल विलिंग टू पे फॉर दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. और इस वाले में वो फैक्टर मिल गया कि हाँ लोग तो एक बार में पे करने को तैयार है, उनको 1000 रुपये के कार्ड में 3000 रुपये का फायदा है. तो अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो देन यू विल गेट पीपल हु वुड बी विलिंग टू पे. So it's a very big lesson. I think most people don't understand. If you can just provide the 2x or 3x value of the money that the customer is paying, you can automatically become rich and your venture would become successful. Most people just try to understand ki how I can get most money from the client or the prospect that is sitting in front of me. But what you need to make the client understand is how you are providing the 2x and 3x value. Right? और वो फिर फुल स्कोप में आपको दिखाया and that's why you are premium but providing a lot much more value than compared to agencies. When you are in right direction, avenues अपने आप open होते जाते हैं. मुझे ऐसा लगा we started for a discount card, but then restaurants and hotels themselves requested कि आप ये तो कर ही रहे हो, can you do it for us, internal club membership program, can you design a brochure for that, can you also handle our Facebook page, can you make the designs for all the collaterals that we have starting from menu to brochure, in short can you look after all the creative angles for us. जब वो करना चालू किया they started paying more. Then when we analyzed in market कि ये वाली चीज़ जो करते हैं उनको बोलते क्या है, I'm talking again back about 2010-11 when I just did my MBA. ये सब एनालाइज करके देखा जो मार्केट में करते हैं उनको बोलते क्या है, तो समझ में आया अच्छा ये तो एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम है जो हम कर रहे हैं. और फिर उसका प्रॉपर ब्रांडिंग करेगी, फुल स्कोप वुड बी अ डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड वी स्टार्टेड गेटिंग मोर ऑफ द क्लाइंट्स. आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम गॉट टू नो कि ये 10 जो क्लाइंट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स तो होटल्स को मिल रहा है. Hotels are saying themselves कि आप 15,000 पर मंथ लेते हो उसकी जगह 20,000 लो, बट ये वाला काम और अच्छे से. Then we specialized ourselves only into hotels. Do you think it's your strength or weakness when you say we are specialized to hotels? आपका क्या take? Yes. Since COVID. No. Now after COVID, again yes. We made up the mind that we should be expanding to other industries. Right. But तब तक COVID खत्म हो गया, clients again started coming back, hotels started running well. So we thought better to be. तो लेट्स से कोई एक नया एजेंसी होने भाई 21 साल 22 साल का, what he should focus on a niche or he should go broad and then narrow? मुझे लगता है और ज़्यादा निश कर देना चाहिए. जैसे मैंने किया था कि सिर्फ होटल्स के लिए सिर्फ डिजिटल ब्रांडिंग करेंगे. नाउ दे नीड मोर निश सेगमेंट कि होटल्स के लिए करते हैं, डिजिटल करते हैं, उसमें भी सिर्फ इंस्टाग्राम एड्स का काम करते हैं, सिर्फ रील्स बनाने का काम करते हैं. मुझे लगता है अगर होटल्स के पास कोई प्रपोजल लेके जाएगा कि हम आपके लिए 25 इंस्टाग्राम रील्स बनाएंगे पर मंथ, सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स, आके शूट करना, रील्स बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना, सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, then hotel will be very interested क्योंकि उनको कुछ लेटेस्ट डिजिटल दिख रहा है. राइट. इंस्टेड ऑफ यू गोइंग ब्रॉड एंड सेइंग हमारे पास ये सारे स्किल सेट्स हैं, यू कैन शो मैं एक्सपर्ट हूँ भाई रील्स में, इंस्टाग्राम वाली, उसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है बट आई कैन प्रोवाइड द मोस्ट वैल्यू. डिजिटल के लिए बहुत सारे लोग नहीं थे. अब डिजिटल करने वाले देयर आर मेनी पीपल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स. सो इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन नेम यू नीड टू गिव समथिंग दैट नोबडी एल्स कैन और नोबडी एल्स एटलीस्ट कैन गिव अप टू दैट क्वालिटी. Got it. So you were a solopreneur जब full scoop started or you already had employees from the discount wala thing? Then couple of people graduated. So who was your first employee? So प्रखर नाम का एक बंदा था. He started very initially and he used to handle the content part and basic social media part, and since beginning I had loved to meet people, do the marketing part, business development part and client service part. So I stayed specifically onto those departments. अच्छा. एंड जब आपने खुद चालू किया सो यू न्यू ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सब कुछ मतलब सब आपने खुद ही सीखा? नॉट ग्राफिक, नॉट वीडियो. सो दिस अनदर इज अ बिग टॉपिक. जब आप चालू कर रहे हो तब आपको क्या चीज़ को लेके इंटरेस्ट है, मार्केटिंग को लेके, क्लाइंट सर्विस को लेके, उसकी बदौलत क्लाइंट्स आ रहे हैं, दे आर ट्रस्टिंग ऑन यू बिकॉज यू हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ए डिटर्मिनेशन कि उनको उतनी वैल्यू दे देंगे रिटर्न. अब कैसे करना है ये आपके लिए एक दूसरा बॉल गेम है. वहाँ गए मीटिंग में ये कमिट किया, मतलब अट्रैक्ट और सेल कर लिया आपने, बट डिलीवरी कैसे करोगे दैट्स अ डिफरेंट बॉल पार्क. तो बाहर आने के बाद फिर आपको उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है कि ये बंदा ये काम कर सकता है, इसको एसोसिएट करो और पूरी टीम बनाओ बेसिकली.
राइट तो मतलब अगर कोई एजेंसी ओनर है तो ही शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन कि इतनी स्किल्स मुझे डेवलप करनी है, बट रादर फोकसिंग ऑन कौन ये अच्छे से कर सकता है एंड गेटिंग दोज पीपल. इफ यू आर अ लीडर, इफ यू आर अ मैनेजर, यू नीड टू नॉट हैव द थिंकिंग लिमिटेड टू क्लाइंट ये पूछ रहा है मुझसे. अभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो या कोई भी बिजनेस में आप हो, ये सबके लिए वैलिड है. क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप उसको ये मत सजेस्ट करो कि ये आप कर सकते हो. अपनी बाउंड्रीज वहाँ तक मत रखो. उसको पूरा सॉल्यूशन क्या चाहिए उसके बारे में बात करो. करवाना कैसे है, किससे है, ये सेकंड प्रॉब्लम है जो आप सेकंड फेज में सॉल्व करो. टेल देम व्हाट टू डू बट नॉट हाउ. हाँ एग्जैक्टली. बट पूरी प्रॉब्लम के पूरे सॉल्यूशन पे बात करो इज व्हाट आई एम सेइंग. डोंट जस्ट से कि ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये आता है तो मैं थोड़ी नैरो थिंकिंग रख के आपको वो सजेस्ट करना. आप तो उसको जो प्रॉब्लम है पूरे का सॉल्यूशन बताओ, कैसे क्या करना है वो आप बाद में सोचो. राइट तो इंस्टेड ऑफ कर दोगे तो अपने आप रास्ते मिलेंगे. हाँ तो अगर कोई होटलर बोल रहा है कि भाई मेरा सेल्स नहीं हो रही, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि एक काम करो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करो या सिर्फ फेसबुक पे ये पर्टिकुलर पोस्ट करो, बी ब्रॉडर एंड बी लाइक ठीक है आपको सेल्स चाहिए, लेट्स क्रिएट अ सेल्स प्रोसेस, लेट्स क्रिएट दिस मॉडल, दैट मॉडल, दिस मॉडल एंड देन कोट योर प्राइस. एंड बी वेरी ऑनेस्ट दैट इसमें से ये मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे एक बंदे को ढूंढना है या आपके पास कोई एजेंसी है, जैसे भी प्लान करना है. बट दे विल बी वेरी डिलाइटेड विद यू इफ यू आर एन एंटायर प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर देम. दे विल बी रिलाइंग ऑन यू. हाँ आप इंजन बन जाओगे उस कंपनी के इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग अ नट ऑन बोल्ट. फिर उसके बाद आप घर आ रहे हो, 2 दिन बाद आपको वो किसी और थर्ड प्रॉब्लम के लिए कॉल कर रहे हैं जिसमें आप शायद हेल्प कर पाओ नहीं कर पाओ, बट यू विल बी अ बट यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज नाउ. ऐसी इमेज बन गई उनकी नजरों में. हाँ अपॉर्चुनिटीज भी है इफ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ. राइट तो अगर आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ऐसे सोचेंगे ठीक है इसको बस ये आता है छोड़ो. बट इफ यू हैव अ ब्रॉडर सेक्टर देन दे वुड बी लाइक ओके लेट मी कॉल फॉर व्हाट्सएप आल्सो इफ दे कैन डू, लेट मी कॉल फॉर फनल्स आल्सो इफ दे कैन डू, ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं क्या. राइट. और अगर आपके पास वो सर्विस नहीं है देन ऑल्सो कमिट इफ यू कैन एंड देन हायर द पर्सन हु कैन डू दैट. For example, I went to a new property started in Indore recently, The Park. The Park. New property. So I discussed with them about social media. We are working with them on to corporate level for several The Park properties. I pitched for the Indore property specifically. We are working for digital branding. Additionally, recently got a call from them. Do you have someone who manages the event internally? Decoration part से लेके event management part, because they get several inquiries. किसी को birthday party करनी है, anniversary करनी है. तो एक बार वो इमेज बन गई कि दिस टीम और दिस कंपनी इज अ रियल प्रॉब्लम सॉल्वर, दे मे अप्रोच यू फर्स्ट फॉर एनी चैलेंज दैट दे फेस. राइट एंड दैट गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज इन द लॉन्ग टर्म. राइट तो फुलस्कोप को कितने साल हो गए सर? 8 years हो गए. एंड व्हेन यू स्टार्टेड डिड यू हैड अ विजन कि यार ये ऐसी कंपनी दिख रही होगी इतने साल बाद या ये इसमें कुछ ऐसा हो रहा होगा? डिड यू हैड सम काइंड ऑफ दैट और यू जस्ट वेंट विद द फ्लो? मैंने देखा कि रहता है, बट ऑनेस्टली इन माय केस आई डिड नॉट हैड. यू डिड नॉट हैड. आई जस्ट हैड. यू जस्ट न्यू कि 2 महीने बाद क्या होने वाला है, 3 महीने बाद क्या होने वाला है. एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया है कोर्स, अब इज्जत पे बात आ गई है. एंटरप्रेन्योरशिप तो करना ही है, खुद का कुछ करना है. जॉब के लिए सोच नहीं सकते, जा नहीं सकते, क्योंकि दोस्त रिश्तेदार सबके सामने ही बोल चुके हैं अपन. इट कुड बी कॉल्ड एज अ शॉर्ट साइटेड थिंग, बट दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी, कि दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी, कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप करना है, कमिट कर दिया है, दुनिया को बोल दिया है, फेसबुक पे भी डाल दिया है, अब क्या करेंगे वो सोचते हैं. राइट सो इट वाज मोर ऑफ लाइक कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ एंड अदर्स दैट आई कैन डू दिस थिंग विच इज द डिफिकल्ट थिंग अकॉर्डिंग टू एवरीवन. हाँ एंड ठीक है. तो व्हाट डिड यू स्टार्ट विद, लाइक आपने स्किल सीखना कुछ चालू करी होंगी. व्हाट वर योर टॉप 3 स्किल्स जिस पे आपने फोकस रखा कि यार ये टॉप 3 है, पहले इसको समझते हैं देन आई विल मूव फॉरवर्ड? दिस इज प्रोबब्ली अ गुड क्वेश्चन. वन थिंग दैट आई डिड ऑन डे 1, और वही चीज़ मैं आज तक करता हूँ, लेटेस्ट डिजिटल ट्रेंड्स पे स्पेंडिंग 20-30 मिनट्स एवरी डे. क्या लेटेस्ट में चल रहा है वो एक्सप्लोर करना, फॉलोइंग द लेटेस्ट इन्फ्लुएंसर्स हु पुट अप रियल गुड इन्फॉर्मेशन, एंड डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर आवर ओन पेज और maybe for some selective clients pages, but learning new things every day is something that will always keep you on the top. Right. तो कौन सी 3 स्किल्स इस पे आप फोकस करते थे? लाइक वन कैन बी यू नो अपडेटिंग योरसेल्फ विद द ट्रेंड्स दैट इज हैपनिंग. व्हाट वर द 2 other parts? 2 other parts, one part I would say to keep the team along. That is very important in any business that you do. So like we discussed starting में फर्स्ट बंदा कौन था, वहाँ से लेके आज अगर 25 लोगों की टीम है, so the only reason is to keep people very connected to us, to not just do it for the sake of them being a part of your business for long term, but actually understanding them, knowing what they want to be. उनको थोड़ी हेल्प जितनी बेस्ट आप कर सको टू लेट देम ग्रो इन देयर करियर्स, नॉट जस्ट कंपेंसेशन वाइज बट ओवरऑल ग्रोथ वाइज. उनको सीखने को मिल रहा है कि नहीं कुछ, वो चैलेंज को अपना चैलेंज बनाना. सो कीपिंग पीपल, बिकॉज टीम इज समथिंग दैट इज द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स व्हेन यू आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री स्पेसिफिकली. तो उनको साथ में रखना आई वुड काउंट इट एज द सेकंड चैलेंज. And so the second skill would be leadership, proper, you know, managing people and understanding the needs. People along with you. Right. वो grow कर रहे हैं तो आप grow कर रहे हो. It makes me very emotional when I think that this person who joined me 5 years back,
he is on this stage now, and after few years he may need more money because he would be in an age when he has to get married. After few years he may need to have kids. I don't know why, but I think up to that level, and would I as an employer or leader be able to give him that growth in the company? That is my responsibility in a way, is what I consider. और मुझे लगता है वो चीज़ vibes पहुँचाती हैं onto your team members. They understand that you actually care for them, not just for them. हाँ, मतलब प्रोटोकॉल नहीं है दीवार पे बस ऐसा चढ़ा के नहीं रखा कि वी केयर फॉर यू ऐसा, बट यू हैव दैट इन योरसेल्फ. ज़्यादा कनेक्ट जो एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग से करता है वो ये वाइब्स रहती हैं. राइट. जेन्युइनली अच्छा सोच रहे हो तो वो वाइब्स पहुँचेंगी सामने. Right. And what is the third skill? So leadership is one. Getting yourself updated is the first one. The leadership is second. What's the third skill? कि यार कोई एजेंसी चालू करने वाला है या बिजनेस ओनर है जो ये देख रहा है, he should be like कि अच्छा इस पे फोकस करते हैं. I would say keeping your priorities right, because बहुत ज़्यादा ना जितना सोशल मीडिया बढ़ रहा है उतने ज़्यादा डिफरेंट थॉट्स भी आपको मिलते जा रहे हैं. एक जगह हो सकता है आपको ये बोला जाए कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट कीप अ विजन ऑन व्हाट यू वांट टू बी, वांट टू डू. सेकेंड कोटेशन उसके जस्ट नीचे आपको ये पढ़ने में आ सकता है कि यार बिल गेट्स ने बोला है मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू हैव गॉट टू हैव लॉट्स ऑफ इट बिफोर टॉकिंग सच नॉनसेंस. तो आप इसकी मानो या इसकी मानो, आपके लाइफ के फेजेस में डिफरेंट कोटेशंस वुड वर्क इन अ डिफरेंट वे फॉर यू. फर्स्ट कोट कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू आर एक्स एज. सेकंड कोट कुड बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू आर वाई एज. तो आपके लिए कब क्या जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोट सबके लिए वैलिड है, राइट, पर सब लेंगे. इसको कब यूज करना है ये आपको आना चाहिए. So I would say setting up your priority of thoughts correctly is the third thing that you need to take care of. और वो तब हो सकता है जब आप proper plan करो. So when I started it, when I was having my challenging phase of life, I had lot of recitations जो मैं मेरे Google Calendar पे 10 AM पे sharp फिट करके रख देता था कि जैसे ही मैं लैपटॉप खोलूँ ऑफिस आके मुझे ये recitation दिखना चाहिए. So it was kind of affirmations that you say daily to yourself. तो वो अगर रहेगा सुबह सुबह अपन को. प्लस आई रिमेंबर देयर वाज अ फेज व्हेन आई डिड एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर 2:15 PM, 1:30 to 2 अप्रोक्सीमेटली लंच रहता है. तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो बेसिकली वर्किंग, यू नीड टू हैव द विजन सेट कि ये मुझे करना है. राइट. एंड except affirmation, did you had anything? For example, in our company we have a simple rule: every team member needs to write the goal of the company 5 times a day. So that's the thing that we do. Second is affirmation. So आपका wallpaper पे तो goal होना ही चाहिए, desktop और mobile के. So if you see our phones or anybody phones, you'll see the goal written over there. So everyone is aligned. And the third thing is affirmation, that you need to say these things yourself. And then we have a kind of a productivity planner, a sheet that is given to every team member every day, and they need to fill it in a proper manner. तो इससे सब लोग aligned रहते हैं और एक ही direction में जा रहे होते हैं, and they don't get negativity or that kind of thing around them. Affirmations के अलावा did you had any such things that you used to do as success rituals, what I call? But yes, verbally whenever we have morning meetings there are some common things that we keep discussing. आपसे रिलेटेड नहीं है कि कौन सा नया क्लाइंट आ रहा है, यू आर ऑल टुगेदर इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो या मे बी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में हो. इमीडिएट में आपको वो न्यूज़ नहीं भी मिलेगी तो इट वोंट अफेक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस. बट इन एवरी मॉर्निंग मीटिंग वी कीप डिस्कसिंग व्हाट न्यू क्लाइंट्स आर कमिंग अप, इफ एनी क्लाइंट हैज वॉकड अवे, क्यों वॉक अवे हुआ, इफ न्यू टीम मेंबर हैज जॉइन, इंट्रोड्यूसिंग देम टू एवरीवन. सो दीज बेसिक गोल्स हैपनिंग्स हैड बीन पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ फॉर एवरी डे. राइट. तो बेसिकली जो भी अपडेट कंपनी में हुआ आप उससे अलाइन रहो, वरना आपको एक्सक्लूडेड फील होगा या एलिनेटेड फील होगा. I want you to be a part of this story. So when you go home, you have an idea about whatever big things have been happening in the company you're working for. ठीक है. एंड which one was your first hotel? The first hotel you got as a client? तो उसकी एक अच्छी स्टोरी ये रही है कि सरोवर पोर्टिको इंदौर हुआ करता था उस टाइम पे. अच्छा. 2012 में. ठीक है. उसके बाद बंद हो गया था रेड आइलैंड मॉल के पीछे. अच्छा. वो हमारा पहला क्लाइंट था होटल्स में. और they had been a very happy client. They were happy up to that extent that they introduced us to their corporate office plus few hotels in Delhi and Mumbai. Okay. I would say that was our entry out of Indore. अब तक इंदौर के clients थे, कोई furniture client, कोई electronics client, कोई ये. This hotel was the client which made us feel that you are working at best for us among all the other clients. तो hotel specialization है, ये भी इस client की वजह से समझ में आया और इंदौर के बाहर ले जाने का भी reason यही था. So they made us understand that you can work from Indore but for hotels all over the world. Right. And right now what are the top brands that you are working for? So we are working with around 15 properties of Marriott hotels, 10 hotels of Radisson, corporate hotels, Hyatt, Hilton and Crown Plazas. So all best brands in India we have been associated on a very good way. Right. So right now I don't have like a family, मतलब बीवी बच्चे, I don't have that, right? So I am kind of a very
I would say risk taker kind of a person. I'm like कि ठीक है देखेंगे जो होगा, you know, because I don't have that pressure. But you have been through that phase, right? For all the people who are young and you know but have that thought कि ऐसा होने वाला है आगे, what is your preparation for that, like work-life balance I would say, or you know some other term if you would like to. I have a kid, 1 year young kid, Manvik, और क्योंकि मुझे अभी बेटा हुआ है, I have a child who is just 1 year, तो कुछ चीज़ें जो मैं current phase of life में realize कर रहा हूँ. So this question is something जिस पे मैं current realization का आंसर दूंगा. I would have been happy if someone would have given this answer to me when I was young. और वो ये है कि आप जिस demographics में हो, you have the top most disposable time with you, and also like you said बहुत heavy responsibilities नहीं है, so you can take highest of the risk. Second, I was fighting with myself in last 1 year of time span कि मैं उतना प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पा रहा हूँ. आई वुड बी कोटिंग अ वेरी रिसेंट एग्जांपल. लास्ट मंथ तक आई वाज फाइटिंग माई सेल्फ कि लास्ट 7 years से यू हैव बीन डूइंग द एफर्मेशंस, यू हैव बीन डूइंग द रेसिटेशन, जो चीज़ अपन ने बात करी पैशनेटली, हर महीने कम से कम 50 क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, जो भी चीज़ अपन बुक्स में पढ़ते हैं या रियल केस स्टडीज़ में देखते हैं, वो सब चीज़ें कंसिस्टेंटली लास्ट 7-8 साल से कर रहा हूँ. पिछले 1 साल से उतनी क्यों नहीं हो पा रही है? Because I'm not able to give that much of time maybe, या फिर my time is little bit divided, which is a natural thing which happens with everyone in their life. But I realized the point I am saying कि मुझे कोई बताता तो ज़्यादा better रहता, वो ये है कि you have to somewhere accept that this particular year or 2 in your life may have little less time or maybe dual time you have to spend. उस टाइम में आप क्या बेस्ट कर सकते हो वो सोच लो and accept that particular fact. रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे, हो गया कि हाँ एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ आपको थोड़ा शायद थोड़ा सा कम टाइम दे पाओगे या फिर आपको 2 चीज़ों में टाइम डिवाइडेड रखना है बिकॉज यू हैव ए इन्फेंट, तब आप हैप्पीली कर पाओगे. राइट. नहीं तो आप खुद से स्ट्रगल करते रहोगे, खुद परेशान भी रहोगे, यार मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स के ब्लड में आ जाता है बेस्ट एम्बिशन काम करना. और आप अगर उस पैशन से सुबह 10 बजे टाइम है और 10 बजे नहीं पहुँच रहे हो, 10:30 पहुँच रहे हो, इतनी सी चीज़ें भी आपको इरिटेट करती है. आप 7-8 साल से 10 साल से कर रहे हो, राइट, जबकि ये चीज़ उतनी गिल्टी फील करने वाली भी नहीं. राइट. तो आप एक्सेप्ट कर लो. इज व्हाट माय आंसर टू योर क्वेश्चन इज. Maybe if you have got married initial few months, you may want to focus there. So accept कर लो कि हाँ, this is a big event of my life. I want to focus on both for at least next few months. If you have become a parent recently, accept कर लो कि for initial some months or a year or 2, I may have to divide my attention in 2 parts. So accept कर लोगे तो problem नहीं रहेगी और खुद से करते रहोगे. Because if you don't accept, you will create 2 personalities. एक बोल रही है भाई काम कर, ये सब कर, एक बोल रही है कि भाई बच्चे पे ध्यान दे, बीवी पे ध्यान दे, you are just being married, so important things of your life, and due to which a chaos will create in your mind, due to which you will be not productive. Absolutely. So be just accept that कि ठीक है मेरे 2 साल I want to focus on this. वो जो आपने तीसरा वर्ड बोला priorities रख लो कि I want this as a priority for now, and then I'll think about the thing. तो ये गिल्टी फील मत करो कि मैं बहुत टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं जितना टाइम दे पा रहा हूँ उसमें क्या बेस्ट कर सकता हूँ वो सोचो. क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर और आपको पता है कि मैं 10 घंटे रोज के नहीं 6 घंटे ही दे पा रहा हूँ, तो 6 घंटे में भी आप कैसे टॉप प्रोडक्टिविटी दे सकते हो ये आप जानते हो. बस इतना है कि सही एक्सेप्ट करके सही तरीके से अलाइन करना है. सो सिंस सक्सेस एक्सपोनेंशियल आपकी लाइफ में ऐसे टर्म्स आएंगे जब लेट्स से आप 1 लाख महीना कमा रहे हो बट अचानक से फिर 5 में पहुंच जाते हैं, देन अचानक से 15 में पहुंचना, यू नो दैट फेज इज केम. सो लेट्स से आपके जो 2 फेज ऐसे गए होंगे, सो व्हाट वाज योर रियलाइजेशंस ओवर देयर कि अच्छा दिस वाज द थिंग टू व्हिच आई वाज यू नो व्हाट दैट. फॉर एग्जांपल वन ऑफ माइन वाज सिस्टम्स कि लेट्स से आई एम अर्निंग 1 लाख पर मंथ, बट द प्रॉब्लम विद मी वाज आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सिस्टम्स कि इस तरीके को ऐसे ही करना है, हाँ ऑटोमेट डेलीगेशन एंड यू नो ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स. आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट द मोमेंट आई रियलाइज्ड दैट माय कंपनी हैड एक्सप्लोडेड 5 times 10 times, राइट. व्हाट वर योर रियलाइजेशन दैट यू हैड कि आई डिड दिस एंड दिस वाज अ बूम दैट आई हैड. So I don't know, it would be connecting to different people. या सबका अलग अलग stories रहती है तो connect नहीं भी हो, both things could be there. But with me it happened that when I was micromanaging my finances कि किस client से क्या amount आ रहा है, कितना देना है and all, तब तक के लिए the growth was limited. But the phase when I was not micromanaging the overall finances, but I was having more attention in terms of how to make company grow faster, how to have new clients, how we can have a setup in some other cities like Mumbai, Delhi and all. Finances were getting managed by itself. ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था या आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट जब अपना फोकस किसी बड़ी चीज़ पे रहता है तो छोटी चीज़ें मुझे लगा अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होगी. मैं नहीं माइक्रो मैनेज कर रहा था कि 10 lakhs इनकम हो रही है, 10 lakhs एक्सपेंसेस है, जब तक इस पे ध्यान दे रहा हूँ तो मेरा ध्यान इसी पे रह रहा है, मैनेज हो जा रहा है. बट द एग्जाम्पल 2 वॉज आई एम नॉट मैनेजिंग इट फॉर नाउ.
ब्रॉडली देख लिया कि अप्रॉक्सीमेटली इतना इनकम है, इतना एक्सपेंस है, मंथ एंड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबको सैलरीज मिल जाएगी, लैंडलॉर्ड को ऑफिस का रेंट मिल जाएगा, जीएसटी पे करने के बराबर फाइनेंस टीम के पास खर्चा रहेगा. जैसे ही ये हो गया, वॉकआउट ऑफ योर अकाउंट्स कैबिन, गेट इनटू द कैबिन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, गेट इनटू द कैबिन ऑफ हेड ऑफ क्लाइंट सर्विस टू एंश्योर अदर पिलर्स ऑफ योर कंपनी आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, सो दैट अगले महीने वापस आप उसी सिचुएशन में नहीं होंगे 10 लाख इनकम है 10 लाख एक्सपेंस है, आप ग्रोथ पे भी ध्यान दे पाए. तो मुझे लगता है अगर उस पर फोकस करें. ये गलती मैं कर रहा हूँ. I am looking finances like very micro manage कर रहा हूँ मैं, because I can see one of the tabs that is open in my Chrome browser is finance का कोने में, it's pinned. So it's the one thing that I need to realize कि उस पे हटाओ so that you can focus more towards. अंशु अगर पूरा दिन भी उस पे दे देगा ना, तो चलो आपने पूरा दिन दे दिया तो कहीं कुछ अमाउंट कम करवा लोगे खर्चों में से, इनकम में से थोड़ा बढ़वा लोगे, बट देयर इज अ लिमिट ऑफ चेंज दैट यू कुड डू मैनुअली ऑन टू योर बैलेंस शीट टिल यू आर इन्वॉल्व ओनली इनटू दैट एक्सेल फाइल. एक्सेल फाइल में कितना चेंज कर लो, इसको इतना पे करते हैं उसकी जगह कम कर दें, इस क्लाइंट से इतना चार्ज करते हैं उसकी जगह ज्यादा कर दें, इफ यू आर सेलिंग अ कोर्स फॉर 999 कैन आई डू इट फॉर 1099, इतना चेंज कर पाओ. बट अगर उस अकाउंट्स कैबिन से बाहर आ जाओगे आप और आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट उसमें आ जाओगे, लाइक वी डिस्कस की ओवरऑल मेलर्स भेज दें अभी किसी को, तो आप उस पर सीधे 10 टाइम्स 20 टाइम्स डिफरेंस पे बात करने लग जाओगे. गॉट इट. अब एक चीज मेरे कंफ्यूजन में थी. आई सी 2 टाइप्स ऑफ एजेंसी ओनर्स इन इंडिया. वन आर जनरलिस्ट that are like ki I know a lot of skills, I cater to a lot of clients, I have a very diversified kind of approach towards life. And the other people are specialists who are like we only do Facebook ads and we only do for these kind of people, and we do exactly this process to get the result. For example, एक agency इंदौर में, I would not say the name, but they are more generalized कि भाई हम काइंड ऑफ आर्मी का भी संभाल लेंगे और वहां से लेके फर्नीचर की दुकान का भी संभाल लेंगे, and we'll do everything. They are also making good money. The media buyer of mine, his name is Vivek Strux Digital. He is specialist, so he's like Facebook ads for only coaches and consultants for only this kind of sales process, right? And he's also making good money. What is the approach according to you, and what Fullscoop has the approach? So we of course are a specialist agency because we do only into hotels, and like I said before, उसमें भी अगर specialization आप choose करेंगे, if someone tells me to start again afresh now, day 1 से start करना है, so I may want to create an agency probably which works with hotels, probably which works only onto Instagram, probably who works only into videos. Now I have a setup which can cater all the things, so I'm happy to do everything that social media needs. But I'm answering the question कि अगर day 1 से start करना होगा, तो while talking to you, I'm visualizing. I may want to create a profile for a hotel which only has videos, okay, which only has maybe reels, and their altogether look of profile is 10 times different than any generic hotel who does all the things on Instagram, Facebook, LinkedIn, everything. So I would create a page. आप बाकी जगह देख लोगे तो दूसरे होटल्स हो सकता है बेटर रहेंगे आपसे, LinkedIn पे, Facebook पे, पर अगर आपने Instagram पे देख लिया और वीडियो के टैब पे बटन दबा के देख लिया तो आपसे बेटर कोई नहीं रहेगा. So maybe that kind of niche specialization. Right. मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ है कि हम सिर्फ यही करने वाले हैं भाई, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, because we are the best at it and nobody else can do that. Right. When did you started to learn presenting skills, selling, or how to get clients for yourself? When did you started to learn that? In your initial startups or after Fullscoop? So fortunately, the final education that I did, fortunately, it was a very good institute which was not at all focusing on the theoretical thing or much on the placement things, but they prepared us as the entire batch specifically onto public speaking, presenting, communication skills, marketing, selling. Our entire course of MBA in our institute was dedicated to real things that you are required to do after the college completes. So वहाँ से लर्निंग चालू हो गई थी. उसके बाद जो फील्ड वेंचर्स थे उसमें ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज कि उसमें ज़्यादा सीखने को मिलता है सक्सेसफुल वेंचर्स से, तो वहाँ से वो कहानी स्टार्ट हुई. If you had a option, if you look back of dropping out, would you? Dropping out of college? From college. So I did dropped out from the placement things, and it was a very celebrated dropping out because I and my then colleague were 2 initial people who dropped out of the placement before placement started. We started the hostel thing that we discussed initially in college days itself. So for starting on your own and not having the required attendance, for that it was mandatory for you to drop out of the placement thing also, so that college के ऊपर लोड नहीं रहेगी, placement नहीं लगता. हाँ, तो हमने फिर तभी उस टाइम पे कर लिया.
Right, got it. So you mentioned कि यार मैंने बुक से इतना पढ़ा है अभी तक जो सीखा है. I also went to the office and see a lot of books. So all of those people will give you a good, don't worry. But what are your books that kind of like shifting moments? कि this book shifted this in me, this book shifted this in me, due to which I was more productive, getting more business, more enlightened in life. तो जैसे मूवीज में रहता है या अपने रिलेशंस में रहता है, एवरीथिंग गिव्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. वैसे ही मेरे लिए बुक्स में रहा है कि अलग अलग बुक ने अलग अलग चीज सिखाई है. फाइनेंसेस में मुझे जितनी भी नॉलेज है, आई वुड गिव द एंटायर क्रेडिट टू रिच डैड पुअर डैड. दैट हैज बीन अ आई ओपनिंग बुक फॉर मी व्हेन इट कम्स टू हाउ शुड यू मैनेज फाइनेंसेस. ये फाइनेंस की बात या उसके बारे में टॉपिक को आपको हैंडल कैसे करना चाहिए, इवन टीनेजर्स के अंदर. और अगर मैं विजन की बात करूं, सो एलन मस्क की बुक है, दैट इज यस, सो दैट इज द बेस्ट बुक व्हिच विल गिव यू कि आप कहां तक सोच सकते हो. कोई बाउंड्रीज ही नहीं रख सकते आप उसमें. एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बात करूं तो 1 Minute Entrepreneur, and this was also one of the initial book that I started. Okay, 1 Minute Entrepreneur. 1 Minute. I haven't read that. What is it? Very small book. There's a guy who shares his own journey, how he became an entrepreneur. छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड नोट्स बनाने चाहिए से लेके मंथली एक्सपेंसेस कैसे आप हैंडल कर सकते हो. बहुत छोटी छोटी बहुत अच्छी चीज़ें दी है. एंड इफ यू आर स्टार्टिंग अप देन दिस बुक इज मैंडेटरी फॉर यू टू रीड, अगर रिसेंट में स्टार्टअप किया है आपने. Got it. So these are few books I'm in instant able to recall. Spirituality से related देवदत्त पटनायक is one of the best author I read about, and उनकी बहुत छोटी छोटी सी बुक्स रहती हैं. मतलब आपको अगर बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है, बुक्स में इंटरेस्ट जनरेट करना है ना, तो उसके लिए भी ये बुक्स बहुत अच्छी है. माइथोलॉजिकल चीज़ों को वो एंटरप्रेन्योरशिप चीज़ों से कनेक्ट करते हैं. ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो, इफ यू सर्च हिज वीडियोज ऑन यूट्यूब. बट अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी. महाभारत रामायण के टाइम्स को लीडरशिप से कनेक्ट करके आपको इतने अच्छे एग्जाम्पल्स बताएंगे कि आप आज की डेट में वो कर सकते हैं. Got it. And you talked about spirituality. What is your take on that, and how does someone start their journey on spirituality? For example, मेरी लाइफ में अगर मैं देखूँ, I got to this concept of spirituality 1.5-2 years back, and तब इतना ध्यान नहीं देना होगा कुछ. But after that I realized कि भाई when you grow your business to a certain level, you need peace in your mind, because then you are like chaotic. You are having a reactive based approach to life. जो भी हो रहा है उस पर react करते हैं. But you're not having passive kind of way where you have decided the whole day and you are going through that. So I got into understand spirituality. Then I did a art of living, a 3-day ka a workshop. It is like morning 5 से 11 तक you go over there. So I did that. I got to understand कि हाँ यार, I am more productive now just by doing these more things. And then I started meditating, and I got to into Silva meditation, and I explored. What is your journey in spirituality? स्पिरिचुअलिटी देखो स्टार्ट ऐसे होता है कि भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो. ये हालांकि बहुत नैरो चीज़ है, इसके आगे स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है. बट लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड रहता है. तो सबसे पहले तो उस आंसर को, उस क्वेश्चन को डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू इट. अगर आप बाई चांस नहीं भी मानते हो, देन ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट इज अ बिगर वर्ल्ड फॉर यू दैट यू कैन एक्सप्लोर ऑन टू. एंड इफ आई टॉक अबाउट रिलीजन और गॉड, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि you have one thing that you can completely trust on, rely on, even if you do not, भगवान को नहीं मानते, पर ये एक चीज़ है, एक एनर्जी है इस यूनिवर्स में जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करती है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन वाइब्स की बात कर रहे थे, तो किसी के लिए वो भी एक भगवान वाली चीज़ हो सकती है, वही वाइब्स कंसिडर की जा सकती है. आई रिमेंबर इवन स्टीव जॉब्स in one of his interview told this, even if you do not consider God, consider at least some energy in this universe which is impacting you, और आप जो चीज़ें कर रहे हो उसको नोटिस करते हो, आपको वो रिटर्न दे देगा. Right. So I read a book. I don't remember the name, but it said कि ये करना क्यों जरूरी है, because now you get hope even in your darkest times. तो आपने अगर किसी एनर्जी को बोल दिया कि यार दिस एनर्जी विल टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज डेज कम व्हेन यू डोंट हैव सेल्स, डेज कम व्हेन यू आर लाइक कि शायद अब कंपनी बंद होने वाली. बट इफ यू कैन बी लाइक कि there's this energy and I know it works, and that's why I just put on it and live with the flow of universe, and then it automatically, because I'm an atheist, like I don't believe in particular gods, right? But considering the energy, considering कि there is something that is controlling this in a more dynamic way, there is something. I feel that inside me कि सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं है. बहुत जरूरी है. मतलब आपको नहीं पता है क्या है, बट एक एनर्जी है जो आपके लिए हमेशा सही कर रही है. वो करोगे ना, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर लिया, डाउन डेज तो आएंगे, उस पर तो कोई संदेह है नहीं, कोई क्वेश्चन है नहीं. तो उस टाइम पे आपको अपने आप को क्या बोलना है
वो यही है कि देयर इज एनर्जी। और थोड़ी देर पहले बुक्स की बात कर रहे थे, इसी बात की एक और बुक ध्यान आई मुझे, रॉबिन शर्मा की लीडर हु हैड नो टाइटल। दैट इज अ मस्ट बुक, एनीवन शुड रीड हु इज स्टार्टिंग अप। उस बुक में एक कोटेशन था जो मुझे हमेशा याद रहता है, इट वाज समथिंग लाइक लीडरशिप इज नॉट, मैंने एक वीडियो बनाया था आपने, आई रिमेंबर। हाँ, तो एक लीडरशिप से रिलेटेड तो है ही, एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज उसमें ये बोली थी कि डू यू थिंक यू आर बिगर देन दिस यूनिवर्स, दिस एनर्जी, दिस यूनिवर्स हु क्रिएटेड मून, ट्रीज एंड ऑल ऑफ अस। तो अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको ये थॉट हेल्प करेगा एक्स्ट्रा ओवर प्राउड नहीं फील करने के लिए। So instead of ego, you'll go to the grateful side. हाँ, because you're like exactly. You are termed it very correctly. और अगर कुछ बुरा हो रहा है लाइफ में तो हद से ज्यादा डाउन फील नहीं करना है, उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर कैटेगरी के बीच में रखेगा। सक्सेस आपको बिगाड़े नहीं, उसका भी ध्यान रखेगा, और आप तो आप हमेशा सोचो कि यार जो भी हो रहा है ना वो उस एनर्जी की वजह से हो रहा है। मत भरोसा करो भगवान पर, एटलीस्ट हो ना, चलेगा, डोंट ट्रस्ट ऑन दैट, बट एटलीस्ट किसी एनर्जी पे भरोसा करो कि कोई है जो ये सब चीजें कर रहा है। राइट, और ये एनर्जी का मुझे पता कैसे चला था, बिकॉज आई सॉ वेरी रिजिड पैटर्न इन माय लाइफ, व्हिच इज मेरा बैंक अकाउंट भी खाली नहीं होता। लाइक देयर आर बैड डेज और मेरी बुरी से बुरी हालत है, लाइक द बैंक अकाउंट हैज गॉन नेगेटिव, 2 महीने से बैंक मेरा पैसा काट रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। बट इफ आई एम लाइक इन नीड ऑफ मनी, आई डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम, बट ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट में उतना पैसा होगा। ये छोटे एग्जांपल ही आपको एनर्जी पे भरोसा दिलवाते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि ये एक इंसिडेंट था व्हिच मेड मी फील लाइक कुछ तो है जो मेरे हाथ में नहीं है, बट वो करके दिख रहा है। दिस एग्जांपल शुड मेक मेनी पीपल रियलाइज कि आप कभी भी किसी बड़े एग्जांपल का वेट मत करो। ये छोटी-छोटी चीजें ही आपको एक्चुअल में हेल्प करती हैं टू ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एनर्जी। Also there's one more thing, the moment I set a goal, I automatically get aligned with that. For example, one of the affirmations I am writing, so I'm not more into fame or celebrity looks and all of that. तो एक affirmation मैं और मेरी टीम हर कोई लिखता है, which is I'm receiving messages from celebrities, press and publications every day. Right? That is one of the affirmations we write. Yes. And I was just like, देखते ना करके क्या होगा, right? And you not believe, in the past 3 months since I'm writing this particular affirmations, there has been so many celebrities getting in touch. There are so many publications even saying we write a book, we'll publish that on our name and give you royalties. There are presses, Eat My News or Startup Karo and all these things which are covering me as an entrepreneur and my company. So automatically that is happening, and I don't know why is that happening. क्योंकि मैंने कुछ effort ही डाला, to be very honest. मैंने कुछ ऐसा effort नहीं डाला कि मैं जाके ढूंढूं companies who can feature me और जाके celebrities को message. I'm not doing that, but it's automatically coming to me. I'm getting random calls from random, I'm not celebrities but big influencers, and talking to me कि hi, how are you? I saw your name over here and whatever. Okay. So it is working. I think that's the energy. Makes sense. बट हाँ, मतलब आप किसी भी तरीके से करो, आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू करो, मेडिटेशन के थ्रू करो, भजन सुन के करो, बट स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको बना के रखना चाहिए। एंड इट शुड नॉट हैव, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो बड़ी एज का काम है, 40, 45, 50 के रहेंगे तब करेंगे। इफ़ यू आर 18, 20, 22 राइट नाउ, आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो वो आपकी और हेल्प करेगा। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो तो ऑफकोर्स आपके अप डाउन टाइम्स आएंगे, डाउन टाइम्स में स्पिरिचुअलिटी आपको और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। And do you meditate? Yes. But my definition of meditation is not sitting like this and all. I love to walk in nature and forest. For me, that is meditation. मेरा बहुत ज़्यादा craze है morning walks को लेके. If I'm getting up at 6:30 a.m. I'm going for a morning walk. That day altogether is different for me compared to when I'm waking up late. So there are very less days when I wake up late. Of course, लास्ट ईयर में ये रेशियो ज़्यादा है, और शुरू में मैं इरिटेट होता था खुद पे कि बिकॉज आई हैव ए बेबी आई मे हैव टू वेक अप कपल ऑफ टाइम्स इन नाइट टू हैंडल हिम, बट आफ्टर आई वेंट थ्रू दिस थिंग दैट वी रिसेंटली स्पोक अबाउट कि एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद से मुझे स्ट्रगल नहीं लगता। तो लगता है ठीक है यार, नहीं हो पाया हूँ ना तो मेरा दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, लेट मी एक्सेप्ट इट। बट कमिंग बैक टू टॉपिक, येस, फॉर मी मेडिटेशन इज doing that kind of morning walk. So just being in an intimate relationship with reality is meditation for you. Correct. Right. I was simple शब्दों में कहूँ कि just being in the present, in the reality, and having a relationship with it is meditation. Especially this is one thing. Second, mornings for me, हर किसी का टाइम होता है। मैं स्कूल कॉलेज में था तब से देखता हूँ कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको who are not morning people, who are night people. रात में 1-2 बजे तक night people. मैं 4 बजे तक जगूँ और दिन में 12 बजे। So do you think that affects entrepreneurs?